Okay, so data understanding, data formatting किया है. Have you checked कौन कौन से data sets है फाइल और गूगल ड्राइव में? Yes. Yes, online. Yes, no. Have you found any Yes, sir. difficulty? कुछ इशू आ रहा है फॉर्मेटिंग करने के लिए? Yes. No, sir. Good. So let's now move towards the next step. एक next step which is a quick insights. Okay. So suppose as a business owner, I am sharing you the data. मतलब ये मैंने आपको data दिया है, which you can see on the screen. Okay. And I want to now understand कि how can I improve my business or what are the key performance indicators which can tell me कि how my business is going on. मतलब मेरा business अभी कैसा शुरू है इसके बारे में मुझे जानना है. Suppose if I am a owner who is running a multi branch, मतलब अलग अलग all over India. Hope you know, right? DMart के इवन पुणे में 3 ब्रांच है, तो all over India there are 100+ branches. तो as a ओनर मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या परफॉर्मेंस है मेरे बिजनेस का, और हाउ कैन आई आइडेंटिफाई कि वट एवर ये महीना जो बिजनेस हुआ है वो प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है, और कुछ कौन से एरिया में इशू आ रहा है, कौन से ब्रांच में लॉस मेकिंग है. आई वॉन्ट ऑल दैट इंफॉर्मेशन. So what are the different ways or what are the different parameters you can tell me so that I can easily understand how my business is growing? Okay, this is one example. We can start with any other example as well. Yes. So ऐसा कौन सा कॉलम हो सकता है जो मुझे समझ में आए इजीली देख के कि ओके दिस इज लाइक गोइंग गुड, और हमारा जो भी इस महीने का, लेट्स से दिस इज दिस मंथ्स डेटा, सो इस महीने जो भी बिजनेस हुआ है वो पॉजिटिव है और वो एक्चुअली प्रॉफिट मेकिंग है. Sales. Sales column. Yes, absolutely. So Sales. there are multiple columns if you observe. First one is sales, second one is profit, right? Profit. So for example, suppose मेरा एक मल्टी ब्रांच और मल्टी एमएनसी वगैरह है जहाँ पे अलग अलग एरिया में अलग अलग बिजनेसेस रन होते हैं. So I want to quickly understand. So what I can do is I can easily suggest them what is my profit in the month. जो भी महीने का डेटा है उस महीने का प्रॉफिट. तो ये कैसे निकालना है? Yes, direct summation, right? Easily you can select the cell, formulas, right? Insert, auto sum कर सकते हो जो automatically आपको sum बताएगा. So what is your profit? $11,000, right? Data formatting किया है, so that's why you see. So 11,000 is your profit. So this is nothing but a indicator हो सकता है, right? KPIs बोलते हैं, key performance indicators. Okay, so you need to give in the quick insight जो third stage है इसमें आपको ये सारे KPIs highlight करने हैं. Okay, so the profit for last month is इतना, right? Something like that. Then one more indicator is sales, कितना sale हुआ है, right? So how you can do it? Select the cell, go to formulas, auto sum, right? Press OK. So कितना sale हुआ है आपका overall? 47,000, right? 47,000 sale and 10 or 11,000 is your quantity. And how much is the average discount you are offering? On an average कितना discount of offer कर रहे हो ये भी जानना जरूरी है, 10%. right? ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपने डिस्काउंट दिया है. So what you can do is you can go to formulas, insert function, यहाँ पे जो required cell है वो select कीजिए, then go to insert function. Just a second. So okay, formulas tab दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए. So this is a formulas tab. In formulas tab आप insert function का यूज करके फॉर्मूलाज आप लिख सकते हो. ओके, इधर ये सारे अवेलेबल है डायरेक्टली फॉर्मूलाज, बट इन सबका कॉम्बिनेशन इसमें है. ओके,
मान लो आपको कुछ एवरेज का फॉर्मूला लिखना है, राइट? तो यू गो टू फॉर्मूलाज, गो टू इंसर्ट फंक्शन, और यहाँ पे सर्च सकते हो इंटर, तो आपको ऑप्शन दिखाई राइट, तो चूज कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट नंबर 1 सिलेक्ट कर, क्लियर? और इजी टू सर्विस, so select second option, press tab, Sir, your open voice tab. is breaking continuously. Okay. वायफाय कोणाचं नेटवर्क असेल तर डिस्कनेक्ट करता का, आय गेस. नो, ठीक है. नाउ चेक कीजिए, मेरा ही मोबाइल था. Sir, can you start from average, sir? Insert function average. Okay. So suppose we want to apply a formula like average discount percentage, मतलब कितना डिस्काउंट हम ऑफर कर रहे हैं टू अचीव ये सेल्स, और ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है ये अचीव करने के लिए हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन एन एवरेज, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. तो ये कैसे करना है, इधर यू कैन अप्लाई अ फॉर्मूला. कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, गो टू फॉर्मूलाज, यहाँ पे ओके, ऊपर इंसर्ट फंक्शन ये वाला, ओके, और डायरेक्टली आप लिख सकते हो इज इक्वल टू AVE एवरेज, राइट? ऐसे, क्लियर? प्रेस टैब, ओके, यस, एवरेज, एंड देन आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हो ये सब, क्लोज. ओके, समझ में आया हाउ यू कैन अप्लाई द एवरेज? सो दिस इज नथिंग बट अ 5% ऑन एन एवरेज, 5% आप डिस्काउंट दे रहे हो टू अचीव दिस नंबर्स, ओके. टोटल कितना शिपिंग कॉस्ट जा रहा है आपका, हाउ टू फाइंड आउट शिपिंग कॉस्ट, इज इक्वल टू सम, डायरेक्टली लिख सकते हो, और ऑटो सम, ऊपर ये जो ऑप्शन है फॉर्मूलाज एंड ऑटो सम पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करेगा, राइट? अब सो व्हाई इट इज नॉट कमिंग डॉलर हियर, क्यों नहीं आ रहा है? फॉर्मेटिंग मध्ये आपण डॉलर चूज नाही. Yes, so hope you are now able to फॉर्मेटिंग क्या understand. नहीं है. Yes, absolutely. तो ये इम्पोर्टेंस है डेटा फॉर्मेटिंग का. जब आप डेटा फॉर्मेटिंग करते हो तो बाकी सारे फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं. सर विचारच होता जर आपण Yes. सेल्स आणि प्रॉफिट जर डॉलर मध्ये फॉर्मेट केले तर हाँ, तर मग तिथे डॉलर शो पण होते. नहीं इथे ओके, बाय द वे ये फॉर्मूला, ये फॉर दिस इज अ ओल्ड शीट जो मैंने काम किया है, तो इसलिए वो नीचे दिख रहा है. ऐसा नहीं कि ये आइडियल है. पहले ये फॉर्मेटिंग किया था बट नाउ इट इज नॉट वर्किंग. ओके, सो दैट्स व्हाई, मतलब ये सेल सिर्फ फॉर्मेट हुआ है, देखिए कस्टम. दिस इज मतलब यूज्ड है, प्रीवियस बैच को दिखाया था तब सेव किया है, तो इसलिए. बट बॉटम लाइन इज आप फॉर्मेटिंग करोगे तो ऑल द वैल्यूज विल लुक करेक्ट, ओके. ऐसा रैंडमली कुछ भी नहीं होगा, डॉलर आएगा नहीं आएगा ऐसा, ओके. सो वन एडवांटेज, लाइक जस्ट वांटेड टू इंडिकेट, ओके, ठीक है. सो देन नेक्स्ट, so these are called a KPIs, key performance indicators. Apart from this और क्या क्या बता सकते हो आप quickly by looking at this, or can I modify the data? Let's say मुझे रफली ऐसा बताना है कि आउट ऑफ जितने भी प्रोडक्ट है लॉस मेकिंग कितने प्रोडक्ट है, ये बताना है. लेट्स से हाउ यू कम अप विद दैट. लेस ऑर्डरचे सर. ओके, ओके, एनी अदर ऑनलाइन? Profit were minus. यस, एब्सोल्युटली. जो प्रोडक्ट का प्रॉफिट माइनस में है, कैन वी से दैट इज अ लॉस मेकिंग? ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, राइट? राइट, सो दिस इज अ लॉस मेकिंग प्रोडक्ट. सो मैं क्या ये बता सकता हूँ एज अ बिजनेस ओनर कि आउट ऑफ, काउंट ले लो, आउट ऑफ 20 प्रोडक्ट्स 10 प्रोडक्ट्स आर लॉस मेकिंग,
राइट? ये पता चलेगा ना. सपोज यू आर, लेट्स से यू आर रनिंग अ स्टोर, एक आप शॉप रन कर रहे हो, उसमें कितने 10,000 प्रोडक्ट्स रहते हैं, राइट? मेडिकल शॉप. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कितने प्रोडक्ट इसमें से लॉस मेकिंग है. नहीं तो ये मैन्युअली थोड़ी आप एज अ ओनर देखोगे, हाँ इसमें लॉस हो रहा है क्या, इसमें प्रॉफिट हो रहा है क्या. इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो समबडी हैज टू बी देयर कि जो कंसोलिडेट करके आपको बता सके, राइट? सो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ क्विक इनसाइट जो आप देख के बता सकते हो. एंड नॉट ओनली सिंपल फॉर्मूला, बट यहाँ पे आपको थोड़ा लेट मी शो यू कि कैसे करते हो. ओके, लेट मी कॉपी पेस्ट दिस शीट and apply that formula. Okay, so this is a data जो like मुझे आपको दिखाना है. फॉर्मेट भाई आपको टोटल फॉर्मेट करना है तो यू कैन कॉपी एंड समथिंग लाइक दिस, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, और रोज भी आप कम कर सकते हो बाय द वे. यहाँ से देखिए, ठीक है. सिलेक्ट केल्यावर सगळं एकदम होतं. येस, ॲक्च्युली पूर्ण सिलेक्ट होतंय, बट टेबल फॉर्मॅट नाही केलं ना, सो दॅट्स व्हाय इट इज गिविंग अस सच हार्ड टाइम. शॉर्टकट की Alt H O I. Alt HOI. Yes. Okay, that's Alt H O I. O. नहीं नहीं. Okay, it's Alt- ठीक आहे, चालेल. Control Alt H W, Alt H W दबाओ. Control A Alt H O I. Alt H. आधी कंट्रोल ए नंतर H वाय. कंट्रोल सिलेक्ट. ओके, Yes हो गए. ठीक है. ओके, नॉट एन इशू. ठीक है, फॉर्मेटिंग यू कैन, मतलब you need to do it. So what I can do is shortcut insert table, table apply करो and yep. बाय द वे इट्स गुड कि आप फॉर्मूला सीख रहे हो, एज इन शॉर्टकट आपको पता है, बट आई डोंट, मतलब मैं इतना याद नहीं रखता. आई चूज टू चेक द ऑप्शन. फॉर्मूला लिखना है तो इंसर्ट फंक्शन में जाके लिखो. दैट्स द माय फंडा. बट आपको इट्स डिपेंड्स, आप रेगुलर यूज करते हो तो यू कैन डेफिनेटली शॉर्टकट्स वगैरह देख सकते हो. एंड एक्सेल विदाउट माउस भी लोग यूज करते हैं. आई हैव सीन पीपल यूजिंग एक्सेल विदाउट माउस. सब कुछ होता है इसमें शॉर्टकट के ऊपर, सब कुछ, मतलब यू नेम इट उसका शॉर्टकट है. जो भी आपको काम करना है उसका शॉर्टकट है. जनरली ये अल्ट प्रेस करके ऊपर आपको शॉर्टकट दिखते हैं. फॉर एग्जांपल ये देखिए, नंबर्स दिख रहे हैं. इफ आई वांट टू गो टू होम टैब देन आई प्रेस एच, राइट? एच के बाद वापस कुछ करना है तो आई कैन गो देयर एंड डू इट. ओके, बट अगेन इट्स, दैट्स व्हाट वो अल्ट एच वगैरह जो बता रहे थे, तो वो ऐसे शॉर्टकट्स आते हैं जो अल्ट प्रेस करके डायरेक्टली यू कैन गो इट. ओके, ठीक है. सो या आई वी वेर ऑन द पॉइंट कि टोटल काउंट. सो इधर आप पूरा सिलेक्ट कीजिए, यू कैन सी द काउंट हियर, बट दिस काउंट इज इंक्लूडिंग द हेडिंग. थोड़ा ध्यान रख, मतलब हेडिंग भी काउंट करता है ये. सो दैट्स व्हाई यू शुड बी वेरी केयरफुल कि काउंट. बट ठीक है, currently let's say you have a 19 प्रोडक्ट, आपके पास 19 प्रोडक्ट है एंड यू वांट टू फाइंड कि लॉस मेकिंग कितने हैं इसमें से. ओके, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट. सो यस, व्हाट वाज द ऑप्शन? क्या शुड आई यूज माइनस? ये जो माइनस में लिखा है, दीज आर लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स, राइट? जूम इन करना है क्या? यस. तो हाउ टू फाइंड आउट इनका काउंट? कैसे फाइंड आउट करना है कितने लॉस मेकिंग है? सर इन फॉर्मेटिंग देयर इज ऑप्शन Yes. just show negative numbers in different. Yes, okay, we'll definitely come to that point.
यस, एनीवन नोज कैसे फाइंड आउट करना है? मुझे लॉस मेकिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सिंपल चेक कीजिए ना, माइनस बाय कौन चार्ट सा है। क्रिएट करके जो है 1 2 3 ऐसा काउंट कर दो, हो जाएगा। राइट, आउट ऑफ 19 देर आर 2 प्रोडक्ट। यस, राइट, ऐसे ही करते हैं कॉलम ना। कॉलम सॉर्ट करके चेक कर सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन मैं मैन्युअली चेक कर नो सकता हूँ ना, क्यों लगाना है? कॉलम सॉर्ट करके यस यस, एब्सोल्युटली। सो दिस इज, किसी को लग रहा है ये भी ऑप्शन है तो डेफिनेटली है, बट आपके पास उतना टाइम है क्या, वो चेक कीजिए, है ना। जनरली डेटा विल बी इन लैक्स, ओके, बहुत ज़्यादा डेटा रहते हैं तो इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो इसीलिए क्या ऑप्शन है फिर? देन वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। वन इज, एक तो आप सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग, ओके। तो ये क्या करेगा, इजीली आपको फाइंड आउट करके देगा। एंड देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, देर इज अ ऑप्शन कॉल्ड फिल्टर एज वेल, जो फिल्टर लगाता है। सो आई विल शो यू फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज, इफ आई मेक इट, फॉर एग्जाम्पल जब आप टेबल इंसर्ट करते हो, राइट, डेटा टाइप, डेटा फॉर्मेटिंग, तो ये ऊपर आपको फिल्टर्स दिखते हैं, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये फिल्टर का बटन ऑटोमेटिकली आता है। नहीं आ रहा है, गो टू डेटा, तो यहाँ पे फिल्टर आपको दिखाई देगा, ये देखिए। ओके, दैट्स व्हाई इफ यू डू द डेटा फॉर्मेटिंग, मोस्टली एवरीथिंग विल बी सेट ऑलरेडी, आपको एनालिसिस करने के लिए सेट हो जाता है। नहीं, मैन्युअली भी आप सब कुछ ऑन कर सकते हो। ओके, ठीक है। देन गो टू प्रॉफिट एंड पुट इट अ स्मॉलर टू लार्जेस्ट। नाउ कैन यू क्विकली सी, ये देखिए, अभी 2 नंबर है आउट ऑफ 18 19, जो भी आपके नंबर है, 2 आर द लॉस मेकिंग प्रोडक्ट। सो कैन यू राइट अ स्टेटमेंट सेइंग आउट ऑफ 18 प्रोडक्ट्स 2 प्रोडक्ट्स आर लॉस मेकिंग? तो ये बड़े लेवल पे बहुत, मतलब नाउ वी आर एट अ क्विक इनसाइट स्टेज, राइट। जब आप पावर बीआई में जाओगे तो आप डैक्स लिखोगे, एक्सप्रेशंस, तो वहां पे ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट होगा, एंड देन यू विल रिप्रेजेंट इट ऑन अ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में एक पूरा ग्राफ बनेगा, आउट ऑफ इतने प्रोडक्ट और लॉस मेकिंग, राइट। कौन सा चार्ट रहता है? पाई चार्ट। ये पाई चार्ट रहेगा पूरे प्रोडक्ट्स का, और इसमें से इतना पोर्शन लॉस मेकिंग का रहेगा, राइट। ऐसा कुछ आप आगे जाके दिखा सकते हो। ओके, बट नाउ आइडिया हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इस बिजनेस में, क्या क्या आप दिखा सकते हो, तो ये आपको समझना है क्विक इनसाइट स्टेप में, राइट। ये आइडिएशन का स्टेप है, आगे जाके ग्राफ, कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड वगैरह आप अलग अलग टेक्नोलॉजी में बनाओगे, बट अभी क्या बनाना है ये सीखना है यहाँ पे। ओके, क्लियर? ऐसा नहीं हो कि पावर बीआई खोला है, फिर इतने सारे ऑप्शंस है, इतने सारे चार्ट्स है, कहाँ से शुरू करना है पता नहीं, राइट। सो इट डजेंट वर्क। मतलब आपको कार, सपोज यू वांट टू, आपने एक बड़ा 4 व्हीलर लिया है, राइट, लेट्स से यू बाय, कौन सा, फरारी। फरारी आपने बाय किया है, ओके। नाउ यू वांट, पहले कभी आपने कार नहीं चलाया, ओके, डायरेक्टली यू बॉट अ फरारी, तो क्या करते हो आप? यू स्टार्ट, गो हाईवे पे जाके चलाते हो, या यू लर्न समथिंग एल्स, पहले अल्ट्रो से स्टार्ट करते हो? हाँ, यस, तो स्टार्ट विथ बेसिक ना, कि क्या कार होता है, क्या ऑप्शन है, क्या फंक्शनैलिटी है, क्या क्या हो सकता है, राइट, कौन सा बटन क्या करता है। देन यू गो एंड बाय समथिंग मोर एक्सपेंसिव, और बाकी चीजें आप ट्राई करते हो। तो सिमिलरली ये एक्सेल के साथ भी होता है। दिस इज फॉर आइडिएशन, यहाँ पे आप आइडियाज करते हो, क्या देख सकते हो इस बिजनेस में, क्या क्या हम हाईलाइट कर सकते हैं, इसका एक रिपोर्ट बनाते हो, ओके। वो रिपोर्ट आप प्रेजेंट करते हो योर टीम, योर मैनेजर, आपके क्लाइंट को। एक बार उन्हें अच्छा लगा, ठीक है, ये भी एस्पेक्ट है जो हम बिजनेस का एनालाइज कर सकते हैं, देन यू गो एंड बिल्ड अ डैशबोर्ड। तो वो लोग हर महीने ये मॉनिटर करेंगे कितने प्रोडक्ट्स लॉस मेकिंग है, राइट, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ऑन एन एवरेज कितना डिस्काउंट हम ऑफर कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, व्हाट आर द केपीआईज, व्हाट इज द इनसाइट, और ये क्या हो गया फिर, इनसाइट हो गया। बिजनेस का जो भी डेटा है, इसका ऊपर, इसका मतलब बिजनेस के जो भी डेटा है, ये डेटा देख के आपने एक ऑब्जर्वेशंस और पैटर्न फाइंड आउट किया है। दिस इज नथिंग बट अ इनसाइट, इसे ही इनसाइट बोलते हैं। ओके, बिजनेस इनसाइट। क्लियर? गुड। देन
अगेन इसका ही सॉर्ट का एक दूसरा ऑप्शन है कॉल्ड फिल्टर। ये भी ऑप्शन यही से आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये फिल्टर जो आपने एक्टिवेट किया है इसे ही आप यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए फिल्टर नंबर फिल्टर्स। ओके, ये ऑप्शन यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सपोज आई वांट टू फिल्टर इट ऑन किसके ऊपर, तो यहाँ पे मैथमेटिकल कंडीशंस है। बचपन में सीखा था ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये देखिए यहीं पे लिखा है ना, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सिर्फ इक्वल टू चाहिए, राइट। तो ये आप कर सकते हो। हमें क्या चाहिए अभी, हाउ शुड आई फिल्टर इट आउट, लेस देन जीरो, राइट, जीरो से नीचे जो भी है। तो नंबर फिल्टर लेस देन जीरो, टाइप कीजिए जीरो एंड प्रेस ओके, आ गया, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन, कि ये मैथमेटिकल सॉर्ट और फिल्टर जैसे नंबरिंग आप कर सकते हो। ये सब कुछ हटाना है आपको, यहाँ पे फिल्टर वगैरह सॉर्ट लगा है, तो व्हाट यू कैन डू इज गो टू डेटा टैब। डेटा टैब में यहाँ पे अगेन सॉर्ट एंड फिल्टर जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लियर नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, देखिए क्लियर। ओके, द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस एवरीथिंग विल बी एज इट इज, इनिशियल जैसा था वो आ जाए। अंडरस्टूड ऑनलाइन। Yes, yes, sir. सो सॉर्ट का जो Yes, ऑप्शन sir. था ये Yes, यहाँ पे है, दिख रहा है। ओके, गुड। सो नाउ लेट्स से ये जो सॉर्ट और फिल्टर जो ऑप्शन आपने सीखा है, सो इसे ही विजुअली आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, विजुअली मतलब यू नीड टू इंडिकेट और हाईलाइट करना है। सपोज दिस इज लॉस मेकिंग, सो आई वांट अ कलर कोड ऑन दिस। मतलब ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको कलर कोड करना है और विजुअली रिप्रेजेंट करना है। जैसे डेटा को चार्ट के फॉर्म में आप दिखाते हो, दैट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ओके, जैसे हमने अभी बोला कि लेट्स से 2 प्रोडक्ट है आउट ऑफ 19, राइट, लॉस मेकिंग। तो हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ स्टेटमेंट यू क्रिएटेड अ ग्राफ, एक ग्राफ बनाया और उसमें आपने हाईलाइट किया, राइट, ऐसे करके कि दीज आर द प्रोडक्ट विच आर लॉस मेकिंग। इसका ही और एक वर्जन है, इज कॉल्ड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेशन का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वैसे ही एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है सॉर्ट एंड फिल्टर। ओके, जहाँ पे आप विजुअली इंडिकेट करें। बाय द वे, किसी ने ऑब्जर्व किया है कि क्यों चार्ट में दिखाना है। मैं सिर्फ इतना ही दिखा सकता हूँ, मतलब मैं डायरेक्टली एक लिख सकता हूँ ना स्टेटमेंट, आउट ऑफ दिस 2 प्रोडक्ट आर लॉस मेकिंग, आउट ऑफ जो भी है सेल्स इज इंक्रीज बाय 10% और 20%, ऐसे हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट में। बट चार्ट एंड ग्राफ्स क्यों ड्रॉ करते हैं? For Okay. better understanding and visualization. a Okay. particular product Product. or month, year. Yes. Okay, good. Generally, Chart and graphs. as a human tendency, हमारा attention span बहुत कम होता है, right? दैट इज अ फैक्ट। और आप जब इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्म में लिखते हो तो मुझे क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है कि क्या लिखा है, एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड। और जो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपको पूरे 1 साल का डेटा और 1 साल का इंफॉर्मेशन कन्वे करना है, राइट, पूरे 1 साल में क्या क्या हुआ था, तो ये कन्वे करना इज मोर इम्पॉर्टेंट और मोर अपीलिंग इन द चार्ट। मतलब चार्ट जब दिखाओगे तब लोग कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्रास्प करते हैं, राइट। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आजकल रील्स भी बहुत फेमस हो रहे हैं, राइट। पहले जमाना था यूट्यूब का, अभी रील्स। क्यों? क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हुआ है लोगों का। एवरीथिंग दे नीड इन विद इन 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, राइट। तो ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है और ह्यूमन बिहेवियर है, जहाँ पे कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे करना है। सो दिस इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई पीपल, आप देखोगे बड़े बड़े कंपनीज में सिर्फ पीपीटी देते हैं। वो ऐसा मतलब पूरा लिटरेचर नहीं लेके बैठते, बुक वगैरह नहीं देते, राइट। एंड इवन ऑन दैट पीपीटी सिर्फ एक चार्ट, एक ग्राफ रहता है। जो भी कन्वे करना है विद इन दैट ग्राफ यू नीड टू कन्वे। सो दैट्स व्हाई बिजनेस इंटेलिजेंस जो ये टैबल्यू, पावर बीआई जैसे टूल है वो बहुत फेमस हो रहा है,
क्योंकि एवरीथिंग पीपल वांट इन क्रिस्प कंसाइज और लिमिटेड टाइम में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे करना है. ओके, so that is why people generally use the charts. Okay, good. So now sort and filter का भी सिमिलर, एक चार्ट की तरह नहीं बट एक विजुअल रिप्रेजेंट आप कर सकते हो. तो दैट रिप्रेजेंटेशन इज डन यूजिंग होम ऑप्शन में. यहाँ पे होम जो टैब दिख रहा है इसके अंदर आपको एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिखेगा. देखिए, तो दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ सॉर्ट एंड फिल्टर. ये जो सॉर्ट एंड फिल्टर है ये विजुअली अप्लाई करने के लिए एक फंक्शनैलिटी दिया है. कैसे ये होता है, लेट मी शो यू. सपोज आई सिलेक्ट अ प्रॉफिट कॉलम एंड आई वांट टू इंडिकेट लॉस मेकिंग प्रोडक्ट. तो क्या कर सकते हैं, गो टू होम, सिलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, एंड इसके अंदर सिमिलरली जैसे हमने फिल्टर लगाया था लेस देन 0. ओके, यहाँ पे लिखिए 0. और डेफिनेटली ये लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है तो कलर कोड क्या होना चाहिए, रेड. ग्रीन, ब्लू जनरली. ग्रीन इंडिकेट पॉजिटिव, रेड इंडिकेट निगेटिव, राइट. येलो मीन्स वार्निंग. देन प्रेस ओके. बाय द वे कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से. ये देखिए यहाँ पे अलग अलग कलर ऑप्शंस है. आपको चाहिए तो मोर में जाके मोर कलर ऑप्शंस भी है यहाँ पे, इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो. डिफॉल्ट इफ इट इज अवेलेबल देन यू कैन यूज दिस. सॉरी, select the data, go to conditional formatting, highlight cell rules less than 0. okay, press ok. देखिए ये विजुअली आप देख के समझ में आ रहा है कि these two products are loss making, right? Clear? So similarly suppose I want to indicate कि मेरा sales कहाँ पे greater than 2000 रुपए. Let's say I want to indicate that. So how I can do that? Similarly, you can select the data, go to home, conditional formatting, highlight cell rules and greater than. By the way, यहाँ पे आप एक important चीज है, duplicate values भी find out कर सकते हो without using any formula. ये देखिए, for example, let's say you want to find some duplicate numbers, तो you can select the sales, column select कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स में जाके डुप्लीकेट एंड प्रेस ओके. डेफिनेटली यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट नहीं है तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट देयर, बट लेट मी शो यू. लेट्स से 221 और एक बार आया है 221.98 हो गया. एंड ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है एक फॉर्मूला है, ये बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली रन होता है. आप जैसे जैसे वैल्यूज अपडेट होंगे वैसे वैसे ये फॉर्मूला भी अपडेट होते रहे. मतलब डुप्लीकेट नहीं है बट फ्यूचर में आ गए तो ये इंडिकेट करेगा. ओके, सो इट इज अ डायनामिक इन नेचर. बट आपका जो फिल्टर एंड सॉर्ट है वो डायनामिक नहीं, वो एक ही बार होता है. एक बार आपने फिल्टर लगाया तो वो हो गया ऐसे, राइट. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. क्लियर? लेट्स से आपको ग्रेटर देन 2000 है तो डेफिनेटली यू कैन यूज ऑप्शन कॉल्ड ग्रेटर देन 2000, राइट. सिंपल. लेट्स से और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं. लेट्स से आपको टॉप 5 आइटम सिलेक्ट करने हैं जो हाईएस्ट सेल्स में है, हाईएस्ट सेल्स के प्रोडक्ट इंडिकेट करने. मुझे पूरे स्टोर में जितने भी आपने प्रोडक्ट बेचा होगा उसमें से टॉप 5 मुझे हाईलाइट करने. तो दिस इज अगेन पॉसिबल यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ओके, इधर आप सॉर्ट कर सकते हो, नहीं तो फिल्टर तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो लाइक हाईएस्ट टू लोवेस्ट. तो टॉप 5 क्या हो गया, हाईएस्ट में टॉप 5 हो गया. बट विजुअली आपको रिप्रेजेंट करने हैं तो यू कैन सिलेक्ट द डेटा, राइट. सेल्स, क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग. यहाँ पे देखिए टॉप एंड बॉटम नाम का एक कैटेगरी क्रिएट किया है ऑलरेडी. यहाँ पे आप डायरेक्टली आइटम सिलेक्ट कर सकते हो. देखिए, ओके, लेट्स से लिखा टॉप 10 है बट यू कैन चूज एनीथिंग. फॉर एग्जांपल टॉप 10 आइटम्स, यहाँ पे 10 की जगह आई कैन मेक इट 5, राइट. एंड ऑब्वियसली रेड कलर ग्रीन नहीं होना चाहिए बिकॉज दिस इज पॉजिटिव थिंग. देन प्रेस. So these are the 5 products which are top highest.
right? So this is directly you can find it. तो सिर्फ ये करके रुकना है क्या? और इससे देख के और क्या क्या बता सकते हैं? लेट्स सी कि आप क्या क्या इंसाइट्स दे सकते हो बिजनेस को. ये दो इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है. कैन यू फाइंड मोर पैटर्न्स? यस. और थोड़ा पैटर्न वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं आप. Which products taking shipping cost? यस एब्सोल्युटली. मतलब टॉप 5 सेल्स कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी थ्रू आ रहे हैं वो देखिए. कैन आई सी मोस्टली टेक्नोलॉजी, राइट? आउट ऑफ 5 3 प्रोडक्ट्स आर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो टॉप 5 सेलिंग है, राइट? सिमिलरली कैन यू फाइंड मोर? देखिए मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम एशिया पैसिफिक. मतलब आपका जो भी बिजनेस है एशिया पैसिफिक में सबसे ज्यादा हो रहा है. टॉप तो वही से आ रहे हैं, राइट? काउंट आप बाद में ले सकते हो बट करंटली टॉप 5. कल जाके एशिया पैसिफिक रीजन में रिसेशन वगैरह आ गया तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको होगा? आपके प्रोडक्ट्स को होगा और आपके बिजनेस को होगा, राइट? सो दिस इज नॉट अ गुड कंडीशन, राइट? एटलीस्ट टॉप 10 शुड बी डाइवर्सिफाइड. अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रोडक्ट होने चाहिए टॉप 10 में. सॉरी, मतलब पूरे रीजन वाइज आपके टॉप 10 होने चाहिए सो दैट एक रीजन में कुछ हो गया तो दूसरा रीजन और इतना बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, राइट? होप यू कैन इंडिकेट दिस. मतलब आप जो भी इंसाइट और आगे जाके जो बिजनेस ओनर को बताने वाले हैं तो ये एक इंडिकेटिंग पॉइंट हो सकता है कि मोर योर बिजनेस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन एशिया पैसिफिक रीजन, राइट? यस. सही में समझ में आया ना कि दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट और दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग पेड फॉर. ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको पैसा दिया जाता है एज अ डेटा एनालिस्ट, राइट? क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर और एज अ बिजनेस जो भी वो लोग हैंडल करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस लेवल पे जाके फाइंड आउट करे इंफॉर्मेशन को, राइट? क्लियर? देन अगेन यू इफ यू गो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में ही है आई गेस, राइट? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या बाकी कंट्रीज आई एम नॉट श्योर व्हाट दे आर डूइंग बट या. तो आप बोल सकते हो बाकी रीजन को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बिजनेस इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट? अलग अलग कैटेगरी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. नॉट ओनली टेक्नोलॉजी, ऑफिस सप्लाई, फर्नीचर वगैरह पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, राइट? सो दीज आर नथिंग बट अ क्विक इनसाइट. आप यहाँ से एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि क्या इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट करने वाले फ्रॉम दिस डेटा. ओके, इफ यू ऑब्जर्व कि इनिशियली हमने स्टार्ट किया था सिंगल कॉलम के साथ, सेल्स, प्रॉफिट, डिस्काउंट, राइट? नाउ वी आर ऑब्जर्विंग और हम रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं विथ मल्टीपल कॉलम्स. प्रॉफिट विथ मार्केट, प्रॉफिट विथ रीजन, सेल्स विथ रीजन, सेल्स विथ प्रोडक्ट, राइट? तो दिस इज कॉल्ड, आपने कभी ईडीए नाम सुना है क्या? डेटा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भी बोलते हैं जनरली इसे. एंड दिस इज कॉल्ड अ बाय और मल्टीवेरिएट एनालिसिस. एक टेक्निकल टर्म है. एक सिर्फ कॉलम यूज कर रहे हो तो इससे बोलते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस. ओके, इफ यू स्टार्ट कंबाइनिंग मल्टीपल कॉलम्स और उसमें से आप पैटर्न और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो इसे बोलते हैं मल्टीवेरिएट और यूनिवेरिएट, बायवेरिएट, मल्टीवेरिएट एनालिसिस. तो इनिशियली यू स्टार्ट विद वन कॉलम, सारे वन कॉलम का एक एनालिसिस कीजिए. देन यू स्टार्ट कंबाइनिंग विथ 2 कॉलम्स. फॉर एग्जांपल इनिशियली आपने सेल्स, प्रॉफिट एनालाइज किया सिर्फ इंडिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, राइट? फिर आपने कंबाइन किया सेल्स एंड रीजन, तो ये हो गया बाय वेरिएट, जहाँ पे आप कौन से रीजन में कितना सेल हो रहा है, टॉप, ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ से टॉप सेलिंग आ रहा है, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन. फिर आपने बोला कि सेल्स एंड मार्केट, सेल्स एंड कंट्री, और आपने आगे जाके ऑब्जर्व किया सेल्स, मार्केट एंड रीजन, 3 कॉलम ने आप कंबाइन किया. सो इट्स कॉल्ड अ मल्टीवेरिएट एनालिसिस, राइट? सो start with one column, then start combining one with the two with the three and all those. Okay, तो ऐसे ही आप आगे जाके डैशबोर्ड बिल्ड करोगे. Okay, then there is one more angle to it. It's a time based, जहाँ पे आप
मंथ वाइज कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे डेट भी दिया है, राइट? हर एक महीने में कैसे चेंजेस हो रही है, हर एक महीने में प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेल्स कितना हो रहा है, राइट? सो दिस यू विल डू इट इन डिटेल्ड जब हम पिवट टेबल वगैरह पढ़ेंगे, राइट? समराइजेशन में वगैरह और डिटेल में जाएंगे, अलग अलग, जैसे ये मल्टीवेरिएट था उसमें एक टाइम का भी एंगल हम ऐड करेंगे, ओके? टेम्पोरल वेरिएबल्स भी बोलते हैं इसे, जहाँ पे टाइम आपको मिलता है, ओके? मंथ, ईयर, डे, राइट? सो दिस इज कॉल्ड अ टेम्पोरल। तो ये अलग अलग टाइप है, उसे कंबाइन करके आप एनालाइज कर सकते हो, बट इम्पॉर्टेंट और मोटिव ये था कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉलम, और उससे बिजनेसेस को एक इंफॉर्मेशन आपको कन्वे करना है, सो दैट दे कैन यूज इट फॉर देयर ग्रोथ। Hello. बिजनेस ग्रो करने के लिए वो लोग यूज करेंगे। क्लियर एवरीवन? क्लियर हाउ क्विक इनसाइट्स वी हैव सीन? सॉर्ट कैसे Hello. आता है, फिल्टर क्या है, ओके? डुप्लीकेट्स कैसे इंडिकेट करते हैं, टॉप 10, बॉटम 10। बाय द वे, नॉट ओनली दिस, यहाँ पे और कंडीशंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। तो इफ यू लेट्स से इन द शिपिंग कॉस्ट, एवरेज से ज़्यादा शिपिंग कॉस्ट, एवरेज किसका? ये पूरे कॉलम का, इस पूरे कॉलम का एवरेज मैंने निकाला, उस एवरेज वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू कौन से सेल में है वो इंडिकेट करना है और वो हाईलाइट करना है। So this is, you can do it again using select, conditional formatting, go to top and bottom. If you select above average, press, you can select any color, red, green, yellow, like this. Mostly आपके प्रोडक्ट हाई शिपिंग कॉस्ट वाले हैं, जहाँ पे एवरेज से ज़्यादा शिपिंग कॉस्ट आप पे कर रहे हो, राइट? समथिंग लाइक। सो विदाउट राइटिंग एनी फॉर्मूला आपने ये इंडिकेट किया है, ना आपने एवरेज कैलकुलेट किया, ना आपने कुछ फॉर्मूला लिखा कि ये वैल्यू से ज़्यादा ये होगा तो कलर कोड होगा, एवरीथिंग इज डन डायरेक्टली, ओके? क्लियर? जैसे मैंने बोला ये फॉर्मूला लगा है, यू कैन नॉट रिमूव दिस, मतलब कल जाके मुझे ये येलो कलर नहीं चाहिए तो यू कैन नॉट गो एंड डिलीट वैल्यूज, ऐसा नहीं होगा, राइट? तो यू नीड टू रिमूव दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला रिमूव करने के लिए और फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, अगेन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नीचे देखिए मैनेज रूल्स करके है। एक तो क्लियर करना है तो डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा सब कुछ, नहीं तो मैनेज आप कर सकते हो। देखिए आपने कितने फॉर्मूलाज लगाए हैं उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आता है, कौन सा फॉर्मूला है, अबव एवरेज कहाँ पे लगाया है, ये कलर उसका फॉर्मेटिंग कहाँ पे लगाया है, ये सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देता है। डिलीट करना है तो यू कैन सिलेक्ट दिस एंड ऊपर डिलीट रोज करके, ओके? डिलीट रूल, सॉरी, डिलीट कर देंगे, अप्लाई, ओके? तो ये यहाँ से फॉर्मूला निकल जाए, ओके? क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? Yeah. So how to use this conditional formatting, how to use filter, how to use sort, okay? So this is part of a quick insight. Clear? Hello, Kapil. So is it possible to find such insights on other data sets? जो भी आपने, Hello. yes, Can you just repeat again the type of analysis, multi? okay, so Uni. univariate, bivariate and multivariate. So uni for single, Uni bi for for. single, yes, bi for two, and multi is for more than two. Okay. Okay. Thank you. So this is how you can remove the rules, और आपको totally completely delete करना है, go to conditional formatting, clear rules, entire sheet कर दीजिए, सारे formulas निकल जाएंगे, मतलब formatting निकल जाएंगे, okay? Understood everyone? So now homework is similar data sets आपके Google Drive के शीट में है, तो उस पे ये आपको formatting, quick insights असाइनमेंट करना है, ओके? और नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज, आप इफ यू फील कि दैट डेटा सेट इज टू सिंपल, यू कैन गो टू, आई विल शेयर दिस वेबसाइट्स एज वेल, ये सारे वेबसाइट्स आई विल शेयर यू दिस वेबसाइट्स एज वेल। एक तो
AI कोश करके एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और data.gov.in, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डेटा सोर्स। यहाँ पे ऑफिशियल डेटा मिलेगा ऑल ओवर इंडिया का। यू नेम इट, आपका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के हिसाब से आपको डेटा मिलेगा। एजुकेशन, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, साइंस, यू टेक एनीथिंग, आपका जो फील्ड है, आपको जो इंटरेस्ट है, उसका डेटा सेट यहाँ पे मिलेगा एंड यू कैन यूज दिट। फॉर एग्जांपल एजुकेशन का तो बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको ऐसा डायरेक्टली देखिए इन्फोग्राफिक, एक्चुअली उन्होंने ग्राफ भी क्रिएट करके दिया है यहाँ पे, परफॉर्मेंस इंडेक्स वगैरह है, ऐसा कुछ कैटलॉग्स है। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आता है, स्टेट एंड यूटी डिस्ट्रिक्ट स्कोर ड्यूरिंग दिस, डाउनलोड करोगे तो डेटा सेट आपको आएगा। मोस्टली लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, ऐसा डायरेक्टली डाउनलोड नहीं होगा, है ना, डिजी लॉकर के थ्रू लॉगिन वगैरह लगता है इधर। यू कैन डू इट इजीली, तो यू कैन चूज एनीथिंग, और ऐसे आपको दिखे कई बार नहीं, वो डेटा नहीं है फिर भी मतलब डाउनलोड ऑप्शन नहीं आएगा, है ना, डेटा नहीं है। So this is one website you can use. I will share it in the group as well, not issue. Then AI कोश करके एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये है, यहाँ पे और डिटेल में डेटा सेट्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कैटेगरी है डेटा सेट्स, थीम बेस्ड डेटा सेट्स है यहाँ पे, रूरल, एग्रीकल्चरल, ओके, थीम है यहाँ पे, उस थीम के हिसाब से आप डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ओके, क्लियर। देन नॉट, आपको और सिंपल चाहिए तो कैगल करके एक फेमस वेबसाइट है, इस पे डायरेक्टली डेटा सेट्स अवेलेबल है। ओके, ये देखिए यहाँ पे ऊपर डेटा सेट्स लिखा है, क्लिक करेंगे तो आपको ये डेटा सेट मिलेगा। ओके, सो दीज आर द वेबसाइट्स विच यू कैन यूज टू गेट अ डेटा सेट्स, और इस पे ऊपर आप कंडीशनल इनसाइट्स, क्विक इनसाइट्स, फॉर्मेटिंग वगैरह सारे जो हमने स्टेप्स देखे हैं वो कर सकते हैं। ओके, क्लियर, Yes. good, okay then, so